નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ. ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં આપણે અત્યાર સુધી ટોટલ 4 કૃતિઓ કરેલી છે. એટલે કે પ્રથમ કાવ્ય આરાધના, બરાબર. ત્યારબાદ બીજું એ સ્ટોરી એટલે કે કહાની ન્યાયમંત્રી, જે સુદર્શન રચિત છે. પછી હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી રચિત એક નિબંધ ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય એ નિબંધ જોઈ લો. પછી ખંડકાવ્ય રામધારીસિંહ દિનકર રચિત કર્ણ કા જીવન દર્શન એ આપણે જોયેલું. આમ ટોટલ 4 જેટલી કૃતિઓ એ આપણે અત્યાર સુધી કરી છે. તમારી જે ટેસ્ટ લેવાની છે એમાં આ 4 કૃતિઓમાંથી જ, અને એ પણ જે અહીંયા વિડીયોમાં કરાવવામાં આવેલ છે તેમાંથી જ તમને પૂછવામાં આવશે. હવે આપણે આગળ ચલાવીએ છીએ. તો જે 5મું સ્વરાજ કી નીંવ એકાંકી વિષ્ણુ પ્રભાકર દ્વારા એ રચિત છે એ આપણે અત્યારે ચલાવતા નથી, પરંતુ ત્યાર પછીનું એટલે કે છઠ્ઠી તમારી કૃતિ એટલે કે આત્મકથાંશ હરિવંશરાય બચ્ચન દ્વારા રચિત છે, જેનું નામ છે મેરી બીમારી શ્યામા નેલી. એ આજે આપણે ચલાવીએ છીએ. અને ત્યારબાદ આપણે ક્રમ કોઈ ચોક્કસ નથી, કોઈ પણ કૃતિ આપણે પ્રથમ લઈ શકીએ છીએ. એટલે એવું જરૂરી નથી કે 4 પછી 5મું જ ચલાવવું. આપણે અત્યારે છઠ્ઠી કૃતિ એટલે કે મેરી બીમારી શ્યામા નેલી આત્મકથાંશ હરિવંશરાય બચ્ચન દ્વારા રચિત કરવામાં આવેલી છે તે ચલાવીએ છીએ. છઠ્ઠી કૃતિ આપેલી છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી, જેના લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન, જેનો જન્મ એ ઈસવીસન 1907માં અને નિધન એ ઈસવીસન 2003માં થયું હતું. હવે આ એક આત્મકથાંશ છે, બરાબર. જેની ચર્ચા કરતાં પહેલાં આપણે તેના લેખક એટલે કે હરિવંશરાય બચ્ચન છે તેમનો એક પ્રાથમિક પરિચય મેળવી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે આ આત્મકથા અંશ છે તેના પર જઈશું. हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया. बराबर. हिंदी साहित्यની અંદર હરિવંશ રાયનું નામ એ તેની એકમાત્ર કૃતિથી અમર થઈ ગયું. એટલે કે હજી પણ આપણે તેની એકમાત્ર કૃતિને કારણે એને याद रखिए છીએ. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. बराबर. तेणे કેટલુંક સાહિત્યનું પણ સર્જન કરેલ છે અને એ એક વિશિષ્ટ સર્જક હતા. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी. इलाहाबाद विश्वविद्यालय એટલે કે ઇલાહાબાદ યુનિવર્સિટીમાં અંગ્રેજી વિષયના પ્રોફેસર તરીકે, પછી એ ઉપરાંત દિલ્હીમાં એક સરકારી સહાયક તરીકે, આકાશવાણીમાં, આ ઉપરાંત 2-3 સ્થળો પર એણે પોતાની સેવાઓ આપેલ છે. પછીનો પેરેગ્રાફ આપેલો છે भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. बराबर. ભારતના એક વિશિષ્ટ કવિના રૂપમાં રાષ્ટ્રપતિએ તેને રાજ્યસભાના સદસ્ય મનોનીત किया था. प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. बराबर. પ્રારંભિક નોકરી શરૂઆતમાં તેણે એક પ્રેસમાં પાયોનિयर प्रेसમાં એણે નોકરી કરી હતી. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था. बराबर. मधुशाला ने કારણે જે
કવિ એટલા ફેમસ થઈ ગયા, બરાબર, કે સભા સંમેલનો અને કવિની ગોષ્ઠી વગેરેમાં પણ એનો ઉલ્લેખ થતો હતો. લોક બડી સંખ્યામાં ઉમટતે થે, લોકો તેને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં એ ટોળા વળતા હતા એને મળવા માટે, એને નિહાળવા માટે. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटस नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है, बराबर. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीना एक कवि पासेथी तेमणे पीएचडी एटले के डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी एने करेल छे. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है, बराबर. एने केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली है त्या एणे हिंदीना विशेषज्ञ तरीके एक खूब ज सारू एवं अप्रतिम कार्य कर्यु छे. आपके कई पुरस्कार जैसे सोवियत-लैंड पुरस्कार, बराबर, आ बधाना पुरस्कार छे. सोवियत-लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, बराबर. आ बधा पुरस्कार तेने प्राप्त थया छे, बराबर. टोटल 3 जेटला एने पुरस्कार मळेला छे. सोवियत-लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण. तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों के जबान पर है, बराबर. ऊपर जे तमने 2 काव्य पंक्तिओ आपी छे ए आजे पण लोको तेनाथी परिचित छे, ए पण ए बच्चनजी द्वारा ज ए निर्मित छे. मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है. हवे आ जे ऊपर आपेला ए बधा एनी आत्मकथाओं छे. एटले के क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आ 4 एनी आत्मकथाओं छे. मेरी बीमारी श्यामा ने ली ए आत्मकथांश छे. एटले के जे आपनो पाठ छे मेरी बीमारी श्यामा ने ली ए शुं छे तो कि आत्मकथांश एटले के आत्मकथानो अंश. जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है, बराबर. आ काव्य आत्मकथांश एटले के आत्मकथानो अंश कई आत्मकथामांथी लेवामां आवेल छे तो क्या भूलूं क्या याद करूं आ एनु जे आत्मकथा छे तेमांथी आ अंश लेवामां आवेल छे. बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, बराबर. बच्चन जी ने प्रथम पत्नीનું नाम એ શ્યામા હતું, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगीनी थी, જે સાચા અર્થમાં એક આદર્શ જીવન સંગીની એટલે કે એની પત્ની હતી. श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी. હવે એની પત્ની શ્યામા હતી, એની બીમારી એ માત્ર એની શ્યામાની જ નહીં પરંતુ બચ્ચનજીની પોતાની પણ હતી. जो सेवा करते करते ले ली गई थी, बराबर, जे सेवा करता करता लेवामां आवी रहेल हती. बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है, बराबर. एनी जे श्यामा प्रत्येनो एनो जो भाव हतो ए जे श्यामानी पति भक्ति एटले के पतिनी सेवा करवानी, एनी निष्ठा, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है, बराबर. हवे तमने जे पेरेग्राफ आपेलो छे अगाउनी जेम के जेमां ए आखुं जे कृति छे ए शुं कहेवा मागे छे, बराबर, तेना विषे तमारे लखवानुं छे अने समजवानुं छे. तो आ ए आखा युनिटनो एक हार्द छे जे आपणे समजवानो छे. प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, बराबर. फरी एक बार जे श्यामा छे ए आपણા लेखकनी पत्नी जेનું नाम श्यामा छे અને એને એવી કોઈ ભયંકર બીમારી છે, બરાબર. એની દર્દનાક કહાની અહીંયા આપવામાં આવેલ છે.
तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। एक बाजु एनी बीमारी ने दर्शाववामां आवी छे तो बीजी बाजु तेनी भावुकता ने संवेदनशीलता प्रगट थाय छे। पछी काउंसमां आपेलुं छे क्यां भूलूं क्या याद करूं, श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाएं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। उसका शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। हवे जे याद राखवानुं तो आ कया प्रकारना आत्मकथांशमांथी लेवामां आवेल छे तो कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली आ आत्मकथांश ए क्या भूलूं क्या याद करूं नामना हरिवंशराय बच्चननी आत्मकथामांथी लेवामां आवेल छे। हवे वात करीए तो आत्मकथा एटले शुं? आत्मकथा पोतानी ज कथा, बराबर। ज्यारे कोई पण व्यक्ति ए आ कोई लेखक होय तेना द्वारा लखवामां नथी आवेल, परंतु जे व्यक्ति छे ए ज पोताना विषे कंई लखे छे, बराबर, त्यारे तेने आत्मकथा कहेवामां आवे छे। अने आ आपणा जे लेखक छे बच्चन साहेब, बराबर, हरिवंशराय बच्चन, तेणे पोताना विषे जे कांई लखेलुं छे, बराबर, तेनो एक भाग ए अहींया तमने रजू करवामां आवेलो छे। तो ए आपणे अहींया जोवानो छे। तो हवे आपणे लाइन टू लाइन जईने एक एक मुद्दाने एक एक वाक्यने समजीशुं। हवे पहला पेरेग्राफ में पहली लाइन आपेली छे, मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से नहीं था, बराबर। हवे अहींया जुओ शब्द आपेलो छे मैं, एटले के लेखक पोते ज अहींया पोताना विषे शब्दों लखे छे, एटला माटे लेखक ए पोताना माटे मैं शब्द वापरे छे हिंदी में। तेनो अर्थ एम थयो के आत्मकथा में लेखक पोते ज ए पोताना विषे कंईक लखे छे, बराबर। एटले के जे पात्र छे लेखकनुं पोतानुं छे अने तेने लखनार ए लेखक पोते ज छे। तो अहींया ए लखे छे मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था, बराबर, कि मारी जे बीमारी छे ए दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, बराबर। ए पोतानी बीमारियों प्रति निर्भय, डरी रह्या न होता, निडर हता। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। एटले के कदाच लेखके, बराबर, बच्चनजीए ए गांधीजीना क्यांक लेख में एवं वाँचेलू छे कि बीमार होना अपराध है, एटले के बीमार थवुं एक अपराध छे। हमें जो शरीर दिया गया है इससे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही, बराबर। भगवाने आपने जे शरीर आपेल छे ए शरीर ने आपणे स्वस्थ न राखीए तो हम अपराधी तो है ही, तो आपणे अपराधी छीए। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था, बराबर। आ तर्क ने ए लेखक ए हजी थोड़ी आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए, बराबर, एटले के अपराधी छे एने दंड देवो जोईए। एटले के जे व्यक्ति ए पोताना शरीरनुं ए ध्यान राखता नथी, बराबर, ए अपराधी छे अने आ अपराधी ने दंड देवो जोईए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और अपने से काम लेता। हवे लेखक शुं करता तो कि अपराधी को दंड देना चाहिए, एटले के अपराधी एटले के लेखक ज्यारे बीमार पड़े छे त्यारे पोताने ने पोताने ए सजा आपता, दंड आपता। शुं करता तो कि मुझे जुकाम बुखार, खांसी, सिर दर्द, एटले के उधरस थई जाए, माथुं दुखे, ताव आवी जाए, सिर दर्द थाय, माथुं दुखे, तो मैं खाट पर न लेटता, एटले के खाटला ऊपर सूई न जता और भी अपने से काम लेता, परंतु ते पोते वधारे काम करता। मुझे भरे भूत बुखार में अपनी
रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बराबर, हवे एने आखा तावथी भरेला होय, भरेभूत बुखार में अपनी रात की अने ते पोतानी रात्रिना ट्यूशनमां ए जाय एवुं एने हजी पण याद छे कि ज्यारे मने हूँ आखो तावथी भरेलो होय छतां पण हूँ रात्रे ट्यूशनमां जतो। ए लेखकने ए आजे पण याद छे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाई मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बराबर, बुखार की गर्मी और तेजी में, बराबर, बुखार थी जे गर्मी छे ए अने तेजी में ए शुं करता तो कि पढ़ाता मजबूरी करके रोटी कमाने को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बराबर, तो हवे जे व्यक्ति भणे छे, मजूरी करे छे, रोटली खावा माटे, रोटी कमाने वाला एटले के रोटी कमाने वाला एटले रोटली कहीं कमावानी वात नथी, परंतु मेहनत मजूरी करीने कमावा वाला, बराबर, ए बीमार पड़े, बराबर, तो क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। बराबर, अमीर लोगों, जे लोग धनिक छे, बराबर, एनी छे बीमारी। गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। गरीबोए कहीं पोतानी पाछळ बीमारी ने लगावी न जोईए, तो धनिक लोगोनी छे एवुं अहींया लेखक जणावे। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह के सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। बराबर, जो लखવું હોય लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता कि भाई हाँ लखવું હોય तो ये ताव ए प्रोत्साहक लागतो। एक तरह की आग, बराबर, ताव आवे एक प्रकारनी आग छे जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। बराबर, तेनी अनुभूतियों में ताप आवतो, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर इच्छलित करती। बराबर, एटले के एने ताव आवतो, बराबर, तो लेखक ए ऊंधो अनुभव करता। बराबर, एने ताव आवतो तो एना विचार हता ए खीली उठता। एक तरफ भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर इच्छलित करती है। बराबर, एटले के एनी कल्पनाओं छे, तेना विचारो छे, तेनो भाव छे, बराबर, एने उकाळीने ए इच्छलित एटले के इच्छा अनुसार करता। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबला कर लिखता था। बराबर, अदबदा एटले के आपणे कहीए ने के एकदम थाकी गया होय अने एकदम उतावळमां ए खराब रीते, तो लेखक एवुं नथी कहीता कि मने ताव आवतो तो एटले हूँ अदबदा लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। बराबर, अने जो ते एवी रीते लखवा मांगे तो बुखार एने कई नुकसान करतो न हतो, बुखार एने माटे बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल। बराबर, हस्ब मामूल एटले के शुं, तो जो आ शब्द छे, आ नवा नवा जे शब्दों आवे छे, बराबर, ए तमने समानार्थीमां पूछाय छे एटले तमारे याद राखवा खूब ज जरूरी छे। हस्ब मामूल, बराबर, ए शब्द पण पूछायो छे तो ए पण तमारे याद राखवानो छे। अहींया शुं लेखक जणावे कि हल्के बुखार एने थोड़ो घणो बुखार होय, बराबर, तो ए तमाम कामों फटाफट करी नाखता हता। बराबर, परंतु कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उससे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। तो जुओ, हवे लेखक ने कोई एम के एने हाथ अडाड़ीने छू कर, बराबर, उसके बदन को छू कर के भाई तने तो बुखार छे, तो ये झड़पथी जवाब दे देता था कि हाँ मने बुखार छे अने हूँ पण छूं। बराबर, किपलिंग नामना एक लेखके तेनी आत्मकथामां कहेलुं कि कभी कभी उससे बुखार में भी काम करना पड़ता था। बराबर, क्यारेक क्यारेक एने ताव आवेलो होय बुखार तो पण तेने काम करवुं पड़तुं हतुं, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था।
અને એ તો એમ જણાવતા કે જ્યારે એને તાવ આવેલો હોય, જब वो बुखार में था तो और अच्छी આ કહાની लिखता था, એટલે કે ત્યારે તો તે ખૂબ જ વધારે સારી વાર્તાઓ લખે છે. બુખાર મેં કમ લિખને કી મુझे યાદ નહીં, એટલે કે એને તાવ આવેલો હોય તો લેખક ઓછું લખતા, એવું એને યાદ જ નથી. वह कैसा बन पड़ा उसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा, बराबर. वह कैसा बन पड़ा उसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा, निर्णय એ લેખક દેવા मांगता ઈચ્છતા નથી. प्रसंगवंश मुझे याद आ रहा है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सातरंत के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बस्कन हनुमान मैंने प्लूरिसी में પડે પડે લીખી थी, બરાબર. હવે આ જે અહીંયા પુરસ્કારનું ને બધાનું નામ આપેલું છે, બરાબર, નોબેલ પુરસ્કારની વાત કરી છે કે નોબેલ પુરસ્કારને પણ ઠુકરાવી દે એવી જે એની આ બે કૃતિઓ છે, બરાબર. એટલે કે દો ચટ્ટાન એ પહેલી કૃતિ અને બીજી સિસિફસ બર્ગ્સ હનુમાન, બરાબર. આ બે કૃતિઓ છે એ તો એણે એ જ રીતે પ્લુરીસીમાં જ લખેલી છે એવું અહીંયા લેખક જણાવે છે, બરાબર. બહરહાલ જબ મેં અપની જવાની પર થા, એટલે કે જ્યારે યુવાન હતા, બીમારી મુझे પરાજિત ન કરતી હતી, એટલે કે જ્યારે એ યુવાન હતા ત્યારે એની બીમારી એ કંઈ પરાજિત ન કરતી હતી, એટલે બીમારી એને કંઈ નુકસાન ન કરતી હતી. મેં ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था, એ જ પોતાની જીદ દ્વારા બીમારીને પરાજિત કરી દેતા હતા. બુખાર સુખાર આખિર કિતને દિન ચલતા, બરાબર. એટલે કે તાવ બાવ આપણે કહીએ ને કે એ તો કેટલા દિવસ ચાલે. વિશ્રામ તિવારી કહા કરતે થે, બરાબર. વિશ્રામ તિવારી એ જણાવે છે, એનું તમને એ વાક્ય આપેલું છે, માર કે પીછે ભૂત ભાગે, બરાબર. એવું જણાવતા કે માર કે પીછે ભૂત ભાગે, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, કામ કે પીછે બુખાર ભાગે, બરાબર. હવે આ જે લેખક જણાવે છે એટલે કે કોણ, તો કે વિશ્રામ તિવારી, એણે જે વાક્ય કહેલું છે એટલે કે માર કે પીછે ભૂત ભાગે. હવે લેખકે તો એના પ્રયોગ દ્વારા એવું સિદ્ધ કરેલું કે કામ કે પીછે બુખાર ભાગે, બરાબર. કામ કરો તો બુખાર એટલે કે તાવ એ વયો જાય છે, આવું લેખકે એ પોતાના પ્રયોગ દ્વારા સાબિત કરેલું છે, આવું લેખક જણાવે છે. તો અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી અટકાવીએ છીએ, બરાબર. હોમવર્કની વાત કરીએ તો તમારે જે આખો કવિ પરિચય મેં કરાવેલો, બરાબર, લેખકનો પરિચય, એ આખો લેખકનો પરિચય તમારે લખવાનો છે. અને આ જે પાઠ એ જ્યાં સુધી આપણે કરાવેલો છે, બરાબર, એટલે કે અહીંયા જે પહેલો મોટો પેરેગ્રાફ કરાવેલો એ એક વખત તમારે લખીને એ હોમવર્ક બુકમાં મોકલાવી દેવાનો છે, બરાબર. અને વાંચવાનો છે. અત્યાર સુધી જે આપણે થોડું ઘણું એ લેખકે કહેલું છે, એક પેરેગ્રાફ જોયો છે, એ તમારે રિવિઝન કરવાનું છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી અટકાવીએ છીએ. ફરી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે આપણે આ પાઠને આગળ ચલાવીશું.